Very, very good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. I, Right. Dr. Arpita Gandhi, I am a practicing gynecologist and infertility specialist from Pune, and I welcome you all for today's very, very exciting discussion on a very common topic. I have irregular periods and I have infertility. So, what do I do? So it is my great privilege to be the moderator for this session. And to kickstart this session without much ado, I would like to introduce all of you to Sir today. Sir is a mentor to all of us. And although he needs no introduction, I would still take the privilege to formally introduce Sir. Dr. Pankaj Talwar sir is MD PhD. He is the CEO at iHoma Fertility Clinics and IC Training Academy at Gurugram, Delhi. Sir is also the Dean of Department of Clinical Embryology and Reproductive Sciences at Sridhar University, Pilani. Sir is PhD in Clinical Embryology, and Sir has been awarded the Vishishta Seva Medal by Government of India for his exemplary services in the field of reproductive medicine. So I'm sure that we all know that we have come to the right place to ask our questions and get the answers. So many times पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी पीरियड मेरा 2 दिन ही आता है, कई पेशेंट्स बोलते हैं 7 दिन ब्लीडिंग होती है, बहुत थोड़ी ब्लीडिंग होती है या इतनी ब्लीडिंग होती है कि मैं कुछ काम नहीं कर पाती, बहुत ही दर्द होता है. सो ऐसे प्रकार के कई क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास पेशेंट से. So let us, I think, sir, we should take the bull by the horns and address the big elephant in the room. कि actually ये periods होते क्या हैं? Let us start from there itself so that we can educate our audience. So thank you, Arpita, for being with me. And it's a very great day for me again because we are meeting so many of our friends again today with a new topic. Yes. So we are trying to meet everyone every 15 days and taking a new topic, bull by the horn, as you rightly said. हम एक प्रयत्न करते हैं to take a topic which is very complex and simplify the whole topic in around half an hour and with a simple correct answer for all of you. So we have spoken on multiple topics till date, and I think last time we spoke about fibroids, about Yes. can they cause fertility problems. That was a very well appreciated topic again. Yes. और आज का topic बहुत ही complex topic है. I think the thing which we take for granted in our life is periods in a woman as a gynecologist. So the most ignored thing, and even as a fertility specialist, I'm very happy doing an IVF and IUI. But we never look at the periods. The periods हमें बहुत कुछ बताते हैं. They tell us a lot of things, how things are happening. So it's a lovely topic which we have picked up today. And thank you so much for picking up this particular issue. So we have to know that periods is a there's a voice coming from behind from somewhere. So we know what the periods are. Periods are it's a programmed way for any woman. And if you look at a woman, she'll have her periods every month. She'll start having her periods when she becomes pubertal. So when she attains an age of around somewhere around 14, she or a bit earlier, she can start having her periods. And they continue till around 40, 42, 44, 45, depending upon some go into earlier menopause, or some continue till 50 years of age. But average age of entering menopause is somewhere around 46, 47 in the present scenario. अब जो सवाल है आपका कि पीरियड्स होते क्या हैं और कैसे होते हैं. सो ये बात हमने पहले भी एक बार उठाई थी. इफ यू रिमेंबर अर्पिता, दैट ए वुमन हैज गॉट two ovaries. She has got two ovaries in her body, and these ovaries have got some amount of something which we call as eggs. उसे कहते हैं जो उनके अंडकोश होते हैं उनके अंदर कुछ डिम्ब होते हैं. They are called the eggs or the follicles, and she is born with a limited number is very high, but that it can't multiply. It's a fixed number of some amount of eggs, and as the woman takes small girl takes birth, she may be having 2 to 3 million, 4 million of her eggs in her body in both the ovaries. And by the time she touches age of 40 years, they become 8,000. तो कहाँ 4 million, कहाँ पे 8,000, और 50 साल की उम्र आते आते they become less than 1,000. अब जो ये
एक्स होते हैं वुमेन के अंदर, जो कि निम्डिम कहते हैं, और द फॉलिकल्स, they are under effect of some hormones which are called FSH and LH, which come from our brain. So brain controls the ovaries. Ovary में X होते हैं, something like, अगर हम एक कार चलाते हैं, in case we drive a car. So Arpita, do you drive a car? Do you drive a car? Yes, sir, I So do. when you drive, yeah, when you drive a car, what makes a car move forward? In case if you allow me to ask you, what makes a car move forward? जी, हम एक्सेलरेट करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी और गाड़ी आगे जाएगी। Exactly. So beautifully you have brought that, given me the answer. So जो hormones होते हैं ना, LH, they accelerate the ovaries or they make the ovaries work. और जब when they come from the brain, they act upon the ovaries and ovaries start working. किसी कारण से अगर ये हार्मोन्स आना बंद हो जाए, नंबर वन, या जो ओवरी में जो उसका इंजन है, हमारी बॉडी का इंजन ओवरीज रहता है, अगर इंजन ही कमजोर पड़ जाए तो कितना भी दबाए एक्सीलरेटर तो क्या होगा? आपने कई बार नोट किया होगा, कहते हैं ना दैट क्लच फ्री हो गया और जैसे एक्सीलरेटर फ्री हो गया, कॉमन थिंग मैकेनिक्स से टेल यू. जी, जी। Not, since I bought an automatic car, I've not heard this, but when I had a manual car, a very common thing, very free हो गया. They have to change some shoe brakes or something, or some brakes have to change. But now things are not like that. So अगर ओवरीज कमजोर पड़ जाती हैं, नंबर एक, तो जो ऊपर से हार्मोन्स आ रहे हैं वो काम ही नहीं करेंगे, राइट? दे हैव टू, उनकी मात्रा बढ़ेगी, so they'll accelerate more, but ovaries may not respond. यस। सेकंड, अगर ऊपर से ब्रेन से हार्मोन्स आ ही नहीं रहे तो ओवरी फिर काम नहीं करेगी. व्हाटएवर यू डू, देयर नो हार्मोन्स एट ऑल, देयर इज नो एक्सेलरेटर. एंड द थर्ड सिचुएशन इज कि जो ओवरी बहुत मजबूत हो जाती है, उसमें नंबर ऑफ एक्स बिकम वेरी हाई. सो जो ऊपर से हार्मोन्स आते हैं ना, वो उसको रेगुलेट ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज कार हैज बिकम वेरी हेवी. व्हाटएवर यू प्रेस, इट इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड. दे नीड मोर प्रेशर, they need more hormones. Yes. In a normal woman, in case I say I'm a normal woman, a young girl, I will have periods every month, technically. These periods come every 28 to 30 days, maybe 32 days. एक तरह का एक क्लॉकवर्क मैकेनिज्म होता है. अगर आपने देखा होगा अर्पिता, आजकल लॉट ऑफ वुमेन आर हैविंग दो एप्लीकेशंस ऑन देयर मोबाइल फोन्स. उनसे पूछते हैं आपके पीरियड्स कब आए, एलएमपी कब था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, तो फटाफट से अपना वो खोलती है और आईपैड पे ट्रैकर. यस. एंड शी विल आल्सो टेल यू मेरा अगला पीरियड कब आने वाला है. That's the way, the periods are Yes. programmed in the way that they come every month. ऐसा program तो नहीं होते हैं, but I mean to say that they're programmed to come every month, but what date is not fixed. But looking at our past performance, the computer, the AI can generate some days, 2-3 days here and there. Woman knows periods कब आने वाले. So periods आते क्यों? Now every month, a woman when she starts bleeding, that is day 1 of her periods. और जो अगला वाला डे होगा पीरियड्स को, which will bleed again, it will become the day 1 of the next periods. इस इंटरवल को from day 1 to अगला वाला day 1 is called one menstrual cycle. इस साइकिल की जो लेंथ है तकरीबन 28 दिन की रहती है. But some women may have them early at 21, some women may have them at 35, some women may not have their period for 3 months, 4 months, and some may start having them at 20 days routinely. So किसी भी स्त्री के अंदर every woman has got 2 parts of those 28 days. अगर हमें 28 दिन का एक साइकिल मान के चले, पहले जो 14 डेज होते हैं, that is called the proliferative phase. एक पार्ट है इसके, पीरियड्स के 2 पार्ट हैं. We don't realize we are getting period, but we don't know in the body it is in 2 parts. तो पहला वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं फॉलिकुलर पार्ट या प्रोलिफरेटिव पार्ट. दूसरा पार्ट होता है सिक्रेटरी पार्ट. सो जो भी हमारी बहनें जुड़ी हैं हमारे साथ में आज, देशों के पीरियड्स के 2 पार्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट वी नो, बिकॉज देयर इज एनफ डेटा अबाउट इट. नॉर्मली इन ए वुमन इज ओवुलेटिंग प्रॉपर्ली, शी विल ओवुलेट ऑन डे 12 और डे 13 ऑफ हर पीरियड्स. एंड हमेशा याद रखिएगा कि जब वो ओवुलेट करेगी, यानी कि जब उनका एक डेम एग, जो कि इसका साइज होता है, फॉलिकल का साइज होता है 2 से 4 मिलीमीटर का ऑन डे 1 और डे 2, that will become around 2 centimeter on day 12 or day 13, and then something called a triggering will come, like a balloon is being punctured by a needle, the egg will come out. जब egg बाहर आता है
दैट इज अ पीरियड, अर्पिता, जिसे हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव जी। फेज. द वे गॉड हैज प्लान्ड ए वुमन, भगवान ने क्या करा, गॉड और द डिजाइनर, वी हैव सम डिजाइनर हु डिजाइन्ड अस. ही डिजाइन्ड इन द वे कि एग जब बाहर आता है उसके बाद 14 डेज है उसके पास में. जो सेकंड जर्नी 14 डेज की फिक्स है. अब एग कब बाहर आता है डिपेंड्स अपॉन द बॉडीज फिजियोलॉजी. एग में कम आउट ऑन डे 10, इट मे कम आउट ऑन डे 15, इट मे कम आउट ऑन डे 25 और 40 और 100. बट सेकंड वाला भाग जो है वो 14 डेज का फिक्स है. आर यू गेटिंग इट? फिक्स्ड है। यस, सो एब्सोल्युटली। ओव्यूलेशन से लेकर अगले 14 दिन तक जो पीरियड होते हैं वो नॉर्मली 28 डेज के होते हैं वुमेन. एवरेज इट मे बी 21 टू 35 डेज ऑल्सो. ओके। तो दो भाग हैं पीरियड्स के. और एक चीज आप याद रख लीजिए कि जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द सेकंड पार्ट, दैट इज फिक्स पार्ट. तो जो अगर वेरिएशन आएगी हमारे, वो पहले पार्ट में आएगी. अगर किसी स्त्री के जो पीरियड्स हैं वो आ रहे हैं 45 डेज के, एक बात पक्की है कि 45 डेज का मतलब होता है कि जो 14 डेज है वो तो फिक्स्ड है, बट फिक्स्ड उनका है। एग जो बॉडी के अंदर रिलीज होकर बाहर आया वो 31 डेज पर आया. यू गेट माय पॉइंट? यस, अगर यस किसी सर। के पीरियड आ रहे हैं, अगर किसी के पीरियड आ रहे हैं ऑन 30th डे और जी। कमिंग ऑन से डे हम्म। 22 20, तो आखिरी 14 डेज फिक्स्ड है. फिक्स्ड है। यानी कि शी हैज ओवुलेटेड अर्लियर, उनके उनके एग हाँ पहले जी। बाहर है. दैट्स द वे वी जी। डिवाइड द साइकिल. और एक किसी की स्त्री के पीरियड्स आने के अंदर एक आपने बोला कि कभी पेन होता है, कभी एंग्जाइटी होती है, कभी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है फॉर ए वुमन. पर जैसे जैसे मेथड इन मैडनेस, देयर इज यूट्रस व्हिच इज वर्किंग, देयर इज एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम में एक एंडोमेट्रियम यूट्रस की लाइनिंग होती है, ये अलग से ही काम करता है, जैसे which sheds down every month during her periods. Then there जी। are the hormones which come from the brain, and then there are follicles. और follicle अपने ऑटो में काम करते हैं. Follicle will release many hormones. They release AMH, they release estrogens. So they all work together and they give women a period on day 28 or day 30 every month. आप सबको समझना है कि पीरियड्स के जितना भी लंबा पीरियड्स होगा, 14th डे पीरियड फिक्स्ड है. और अगर आगे साइकिल छोटी या बड़ी हो रही है, ये पहले का भाग उस पर डिपेंड करता है. बट ओवुलेशन के बाद 14 डेज के बाद यू शुड गेट अ नॉर्मल पीरियड्स. दैट्स द वे द होल मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी वर्क्स. यस, थैंक यू. वाओ, आई एम श्योर मेरे जितने भी फ्रेंड्स हमसे जुड़े हुए हैं दे हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट रियली वेल. और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ पुट देम इन द चैट बॉक्स, विल टेक देम एट द एंड फॉर श्योर. सर, अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आई, एक 20 ईयर ओल्ड यंग गर्ल अपनी मम्मी के साथ आई. वो कहने लगी मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, सडनली बाल बहुत बढ़ गए, बार बार मुझे पार्लर जाना पड़ रहा है, और पीरियड्स तो बिना ही दवाई लिए आते ही नहीं हैं. सो इस केस में हम क्या करेंगे? हाउ उसके क्या टेस्ट करेंगे, क्या मेडिसिन स्टार्ट करेंगे? हाउ डू वी गो अबाउट मैनेजिंग सच अ लेडी विद हर इरेगुलर पीरियड्स? Wow, it's a lovely question. I think you are giving me a sort of a case report, real case हाँ scenario. जी, हाँ जी। तो ऐसे अर्पिता, ये बहुत बड़ा आजकल बहुत। हाँ जी। बहुत तो सिंपल सा सवाल है. आई थिंक सिंपल सा जवाब रहेगा इसका कि इस दिस यंग गर्ल मे बी हैविंग समथिंग कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी एज पर योर डिस्क्रिप्शन. जी। सो आप सबको जानना, आप सबको जब आप इससे भी जानना चाहेंगे कि एनी वुमन who is got some maybe having some amount of obesity, even thin PCOS can be there. कि अगर किसी का वेट हाई है, वेट ज़्यादा है, in case somebody has got acne on her face, somebody has got brittle hairs, याद रखिएगा, we look at big things. We look at an ultrasound machine, we look at AMH, inhibin B. Just remember that in case you look at the woman, she's got an oily skin, pimples, उनके बाल break, they're brittle hair she's having. ब्रिटल। She's having high BMI, body mass index. She's having irregular periods. I think it fits into something called polycystic ovarian. We call it a PCO. पीसीओ। इनके साथ कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं, सब प्रॉब्लम्स वी कॉल इट ए PCOS और PCOD. बट नॉर्मली सच वुमेन हैव गॉट. इसमें क्या हो रहा है अभी अर्पिता? मैंने आपको बोला था कि अगर गाड़ी का अगर ओवरी कमजोर पड़ जाए, उसमें जी। कम कम डिम बनते हैं, कम एग बनते हैं.
Mm-hmm. So in that case, the ovary will have shorter periods. But when a woman has got large number of follicles, जो उनकी ओवरी में जो एग रिजर्व ज़्यादा रहता है, we call it a PCO. और हम कैसे जान पाते हैं इसको? By doing an ultrasound. When a young girl who has come to you, we normally carry out a trans-abdominal ultrasound. हम जानेंगे कि उसकी ओवरी के अंदर डिम की जो संख्या है वो ज़्यादा है. मे बी मोर देन in total egg reserve maybe more than 12 or 15 per ovary, so around 20 23 in both the ovaries. That is called antral follicular count. Follicle. So Okay. Arpita, anyone who's watching us, they should know that there's something called antral follicular count or AFC. ये बहुत ही important हमारा it's a way to make out whether woman has got PCO or not. Second, something is called, there's a hormone called AMH, anti-malarial hormone. अगर AMH की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, नॉर्मली इट्स अराउंड 2 नैनोग्राम्स पर एम, बट अगर AMH की मात्रा बढ़ जाती है, इन दैट केस द वुमन मे बी हैविंग, अगेन इट विल गो टुवर्ड्स PCO. So when a girl has got AMH high and number of follicles are high, आप सोचिए कि आपका जो गाड़ी का इंजन है, अगर ओवरी एक गाड़ी का दिल है, इंजन है, तो इतना हैवी हो गया है कि ऊपर से हार्मोन्स आ रहे हैं ब्रेन से, आपका एक्सेलरेटर जो बताया था आपने वो काम ही नहीं कर रहा उसके ऊपर. जब ओवरी अपने भीतर से एमएच जनरेट करती है, एमएच कहाँ से आता है? ओवरी से आता है. जब एमएच की मात्रा बढ़ जाती है, दैट बिकम्स दिस इट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव. एमएच होना बहुत जरूरी है, बट अगर एमएच की मात्रा बढ़ गई, so in that case it will suppress the ovary. It won't allow ovary to grow. That's the way the God has designed an ovary. So AMH अगर बढ़ जाता है तो ओवरी को बढ़ने नहीं देता है, और अगर ओवरी बड़ी नहीं होती है तो फॉलिकल नहीं बनते हैं, और अगर फॉलिकल नहीं बनेंगे तो क्या होगा? ओवुलेशन नहीं होगा. नहीं होगा. अब ऐसा तो होता नहीं है कि अब अगर एमएच की मात्रा ज़्यादा है और फॉलिकल भी ज़्यादा है पीसीओ के अंदर, तो इट नीड्स मोर प्रेशर, इट नीड्स मोर एक्सेलरेशन. अब फ्रॉम ब्रेन FSH विल कीप कमिंग, वो धीरे धीरे अपना बढ़ाएगा, इट कीप एक्सेलरेटिंग. हार्मोन्स आते हैं ब्रेन से, वो दबाएंगे पेडल को. बात नहीं बन रही, ओवरी बोलेगी ना मैं नहीं हिलूंगी. एमएच आई है, ओवरी में एक इनहेरेंट रेजिस्टेंस होता है अर्पिता, उसे कहते हैं AMH. एमएच कहता है कि मैं तो, नॉर्मली एमएच होगा कमजोर, FSH आके इसको हिला देगा, बट AMH ओवरी बिकम बिग नाउ, बिग ओवरी, बड़ी ओवरी हो गई है, तो हम जोर डाल रहे हैं, ओवरी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, बिकॉज इसमें AMH की मात्रा बहुत ज्यादा है. बट कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, पॉइंट विल कम दैट ओवरी विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. व्हेन इट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग, द फॉलिकल्स विल स्टार्ट ग्रोइंग. और एक समय आएगा अर्पिता जब फॉलिकल्स they become independent of their inherent control, and they start responding, and they become around 20-22 millimeter, from 2 to 3 millimeter. And that's the time now they will ovulate. तो क्या सीखा आपने इसके अंदर? जो हमने सीखा इस वार्तालाप से कि अगर फॉलिकल एमएच ज्यादा है तो देरी के बाद फॉलिकल बड़े होने शुरू होते हैं, देरी से बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं. दे मे टेक 2 months, दे मे टेक 45 days, दे मे टेक 3 months, पर एक समय आएगा जब वो ओवुलेट होंगे. परंतु ओवुलेट होने के बाद 14 days फिक्स्ड है. जी. That is the secretory phase. So such women, such girls, they don't ovulate at time, they ovulate later. So मम्मी के लिए क्या प्रॉब्लम है इस समय? मम्मी के लिए प्रॉब्लम है कि मेरी बेटी को पीरियड्स नहीं आते, उसकी शादी करनी है. That's her problem. और वो परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में. और जब भी उनका शादी हो जाती है तो परेशानी किसकी बच जाती है? हस्बैंड की, और अगेन द होल फैमिली की. अब इसको बच्चा नहीं हो रहा है, शी इज नॉट गेटिंग फर्टिलिटी, बिकॉज अब मैंने आपको बोला कि एग टूटने का दिन तो फिक्स्ड है, मे बी 12th और 13th डे. एग की लाइफ होती है 24 घंटे की और 36 आवर्स की. अगर नॉर्मली जो हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, वो कस्टमरली बताया गया है कि मिड साइकिल में अगर हम आपस में रिलेशनशिप्स रखें, कपल इज टुगेदर इन द मिड साइकिल,
they are able to conceive in case they have contact for 3 to 4 days because that time egg is coming out. इससे पहले आप कितना भी रिलेशनशिप रखें या बाद में रखें, एग नहीं रहेगा तो फर्टिलिटी नहीं होगी। नहीं होगी। जब इन बच्चों को पता ही नहीं है कि ये कब ओव्यूलेट कर रहे हैं, so they are erratically having contact with each other and they will have issue of fertility. So जो आपका सवाल था, सिंपल से इसका आंसर ये है that in a PCO patient or a PCOD patients, ovulation will occur but they'll be occurring late. And we say it is an anovulatory cycle कहते हैं। और sometimes ovulation शायद होता ही नहीं है, देर तक नहीं होता। अब धीरे धीरे एस्ट्रोजन बॉडी में आते रहते हैं, एंडोमेट्रियम बड़ा हो जाता है, फिर अपने आप से ब्लीड कर जाता है। तो नॉर्मली रिमेंबर दैट ओवुलेशन पीसीओएस के अंदर होता है पर एक इरेटिक तरीके के साथ में होता है और इस होने से पीरियड्स गेट डिलेड। That is the main worry for all the PCOD patients. But now this is pretty common and very easily treatable also. So that would be my take on your question about PCO patients and young patients. Wow. So I'm sure मेरे सारे फ्रेंड्स का PCOD को लेकर बहुत सारा डाउट्स आज क्लियर हो गया होगा। तो ये तो बात हो गई जो बहुत सारे अंडे हैं सर। अब कई बार पेशेंट्स आती हैं 35 इयर्स की है, 37 इयर्स की है, जिनको कोई बच्चे नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैडम हमारे 20-20 दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, कई बार 20-21 दिन में आ जाते हैं, डेट तो 10 दिन बाद की। तो अब हम क्या करें? ये भी दिस इज द उल्टा सिचुएशन। जब ओवरी के अंदर ओवरी की जो ताकत है, जैसे हमारे बैंक अकाउंट की ताकत क्या है? बैंक अकाउंट की ताकत है कि जब भी हम कार्ड को स्वाइप करें और कुछ पैसा विड्रॉ कर सकें, राइट? बैंक अकाउंट के अंदर मतलब बात क्या है कि वी कीप एडिंग आवर बैंक अकाउंट ना, उसका अपडेट हर महीने सैलरी आ जाती है। बट ओवरी के अंदर सैलरी फिक्स है, गिनती के एग हमारे पास में आते हैं। अगर किसी कारण से एग रिजर्व ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम है। इन दैट केस ओवरी विल फाइट टू नॉट टू ओवुलेट। वो ट्राई करेगी कि वो हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है ओवरी, उसकी बॉडी के अंदर एएमएच की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एंटी मुलेरियन हार्मोन। सो देयर विल बी एनोवुलेशन और डिलेड पीरियड्स। ऑन द अदर हैंड वी हैव सिचुएशन कॉल्ड व्हेन उस बच्ची का ओवेरियन रिजर्व कम है। सो आई एम सेइंग ओवेरियन रिजर्व। ओवेरियन मतलब ओवरी, रिजर्व मतलब जो उसके अंदर एग्स रहते हैं उन्हें कहते हैं रिजर्व। जी, रिजर्व। और इसको हम जान सकते हैं बाय डूइंग एन एएमएच और अल्ट्रासाउंड। जब किसी यंग गर्ल का एएमएच वैल्यूज आर मोर देन 3.5 अप्रॉक्सीमेटली, शी मे बी हैविंग पीसीओएस और पीसीओडी। जब रिजर्व कम हो जाता है 1.2 से कम और 0.8 0.5 तो रिजर्व कम हो गया। और जब रिजर्व कम होता है तो उल्टा होता है। अब ओवरी के अंदर ताकत कम है और ओवरी छटपटा रही है रिस्पॉन्ड करने के लिए, बिकॉज उसको इट इज ओवरी हैज बीन प्रोग्राम टू ओवुलेट वंस अ मंथ एंड टू मेक हार्मोन्स। परंतु अगर ओवरी में रिजर्व कम है, एएमएच कम है, एएफसी कम है, यानी कि अल्ट्रासाउंड पे एएफसी कम दिख रहा है, सो जो थोड़ी मात्रा में भी जो हार्मोन्स आते हैं ना, दे विल स्टिमुलेट एन ओवरी टू स्टार्ट ओवुलेटिंग, नंबर 1। पर अब अंडों की मात्रा कम है तो ब्रेन भी ना हार्मोन्स की मात्रा बढ़ा देता है अपनी तरफ से, तो लेवल्स ऑफ एफएसएच में स्टार्ट गोइंग हाई। सो एएमएच लो हुआ तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा आएगा। नाउ यू आपको पता है कि मेरी कार इज एन ओल्ड कार, एग्जांपल दे रहा हूँ आज मैं आपको, आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स। सो अगर एक कार पुरानी है तो यू हैव टू एक्सेलरेट मोर ना, so this engine is getting older, so we'll have to accelerate more. So dim की मात्रा कम है, AFC कम है, AMH कम है, तो brain will put more accelerator and as a result more eggs are recruited. तो क्या होता है इस पूरी जर्नी के अंदर she will ovulate earlier, she will ovulate on 8th day. अब अगर अर्पिता वो 8 डे पे ओवुलेट करी तो उसके पीरियड्स कितने दिन के होंगे? उसके होंगे 22, 14 मैजिक नंबर। सेकंड छोटा हो गया ना जी। बोला आपने क्या नंबर? 22, 8 + 14। 14 तो सेकंड छोटी होगी ना यहाँ पर जी। she may ovulate on day 9 or day 8 or day 7, so 7 + 14 again you have to add those 21. So जब साइकिल छोटी हो रही होती है, जब किसी का ओवरी में रिजर्व कम है, जब कोई एक लेडी इज एजिंग ग्रेसफुली,
दिस थिंग विल हैपन टू हर एट अराउंड 42-43 ईयर्स ऑफ एज, जब साइकिल छोटी होनी शुरू हो जाती है। तो छोटी साइकिल का मतलब है इन अ नॉर्मल वुमन दैट शी इज ओवरीज आर बिकमिंग वीकर एंड she has got poor ovarian reserve. Such girls will have early periods, shorter periods, और सेकेंड वाला भाग फिक्स है 14 डेज का, पहला वाला भाग जल्दी हो रहा है। नाउ दिस थिंग इज नॉर्मल एट 42-43, बट अब नॉर्मल इन ए यंग गर्ल। अब इसमें हमारा वरी ये रहता है कि अगर वो जल्दी से रिस्पॉन्ड कर रही है और फटाफट से ओवुलेट कर रही है, जल्दी से ओवुलेट कर रही है, तो उसका जो भी रिजर्व है वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। नंबर 2, so this is a short cycle is a marker of diminished ovarian reserve, यानी कि what do you mean by diminished? जब कम हो रहा है उसका कम हो ओवरी रहा है। जो करेंसी है ओवरी में, ओवरी की जो करेंसी है, ओवरी में जो पैसा है, जो एक्स है वो कम हो रहे हैं, शी विल हैव शॉर्टर साइकिल्स। और पीसीओडी के अंदर बहुत ज्यादा है, तो वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, वो किसी की बात सुनती नहीं है, वो अपनी मर्जी के साथ ही काम करती है। हियर इट इज डिलेड, so longer cycles means PCOD, PCO, and shorter cycles means reduced ovarian reserve. रिजर्व। और ये हमारी क्षमता होनी चाहिए अर्पिता, that we pick up the cycle very quickly. इनके someone tells me कि मेरी साइकिल आ रही है 25 मिनट के अंदर, तो मेरा एकदम से दिमाग should start thinking. बट हम क्या करते हैं, IVF कर दो जी, IUI कर दो जी, so we are somehow moving towards an intervention. And then we start ordering for AFC, AMH, FSH, LH, सब करने की जरूरत नहीं होती है। एक लेडी की माहवारी का जो पैटर्न है, हर 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 cyclical schedule will tell us where we are actually. Simply, I'm just saying that. So we must talk to the patients. And ये मेरा एक छोटा सा एक आप सबके लिए, all the people who are here, doctors who are here, we should know that we should ask a woman's menstrual cycle history very very carefully. वो हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, परंतु हम नए युग के अंदर हम क्या करते हैं, हम नए युग के अंदर वी वांट टू डू ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और अल्ट्रासाउंड्स, वो ज़रूरी है करने, बट अगर हम उनसे बात करेंगे, विल गेट लॉट ऑफ आइडिया अबाउट द वुमन, अबाउट हर फर्टिलिटी पोटेंशियल बाय टॉकिंग टू हर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो फ्रेंड्स, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि किसी भी चीज़ जैसे बाकी चीज़ें हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम होनी चाहिए। सो सर, अब मेरे पास एक और पेशेंट आई, उसकी मदर इन लॉ लेके, एक यंग बहुत सुंदर सी लड़की। मदर इन लॉ कहने लगी कि जब से शादी हुई इसको पीरियड ही नहीं आ रहा है, 4-5 बार प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, प्रेगनेंसी है नहीं, तो अब क्या करें? अभी शादी को इतना टाइम हो गया, तो प्रेगनेंसी तो हमें चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? मदर इन लॉ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? So mother-in-law, mother, father-in-law, the whole family, हमारे हमारे the how the society has been created. It's a very beautiful society where everyone, लोग एक ही सपना होता है सबका कि to have a child. I mean, I think the feeling is more intense, Arpita, in the parents or the grandparents than the Absolutely, couple they itself. are more worried. आजकल ये बच्चे कहते हैं छोड़ो, नहीं करना, समय नहीं है हमारे पास, but माता पिता और the family gets after them. वो बेचारी आजकल बच्चे लोग इसलिए पैदा करते हैं कि ऊपर से प्रेशर है उनके पास, अदरवाइज दे ऑल वांट टू वर्क, बाद में आईवीएफ करा लेंगे। It's a very beautiful feeling when we get such couples to us. But here इसमें एक छोटा सा कैच है। This girl, देखो, माहवारी कभी भी नहीं आना, पीरियड्स कभी भी नहीं आना, इसे कहते हैं प्राइमरी एमिनोरिया, और आने के बाद कम हो जाना, धीरे धीरे बंद हो जाना, इसे कहते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया। एमिनोरिया मतलब कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या पीरियड्स आ रहे हैं पर धीरे धीरे बंद होते होते दे गो इनटू एमिनोरिया, पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। इससे पहले जब आपने बात करी, वो बात करी पीसीओडी, पीसीओडी के अंदर पीरियड्स लेट होते हैं, सो वी है शी गेट्स इनटू सेकेंडरी एमिनोरिया, माहवारी लेट होती है उनके अंदर, पर होती है। सेकंड कंडीशन वाज कि फटाफट पीरियड्स हो रहे हैं और बाद में पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे, अगेन कॉल्ड सेकेंडरी एमिनोरिया। बट एक और कंडीशन है बड़ी खूबसूरत, which is my favorite, which is called primary amenorrhea in a young girl. It's a very challenging condition. इस पे वो, this girl is absolutely okay, car is okay, her engine is absolutely good. मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ एक ओवरी को एक कार के इंजन के साथ में, सो पीपल समझ पाएंगे, डोंट टेक मी रॉन्ग। पीसीओडी के अंदर एक्सेलरेटर कितना भी आप दबाएं, ओवरी काम ही नहीं करती है,
ओवरी कहती है मैं इंडिपेंडेंट हूँ. इन पुअर ओवेरियन रिस्पॉन्स ओवरी प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, तभी उसमें लेवल्स ऑफ एफएसएच विल गो हाई. इन पीसीओडी पेशेंट में क्या रहेगा, ओवरीज इंडिपेंडेंट, वो अगर वी आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर वो वापस मार देती है, तो लेवल्स ऑफ एफएसएच विल कम डाउन. यू नो ना, द लेवल्स ऑफ एफएसएच आर लो इन पीसीओडी. एफएसएच इज योर फुट पेडल, जो आप पाँव का जोर लगा रही है. एक्सेलरेटर. हाँ जी. पीसीओडी में कम हो गया, ओवरी बड़ी हो गई है, तो वापस पुश कर दिया. पूरे ओवेरियन रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आपको दबाना पड़ता है, सो एफएसएच लेवल्स गो हाई. बट इन दिस कंडीशन कॉल्ड हाइपो देयर इज नो फुट पेडल ही नहीं है. कार तो बना दी, पर गॉड हैज टेकन अवे द फुट पेडल, बिकॉज ऊपर से हार्मोन्स बन ही नहीं रहे. देयर आर नो हार्मोन्स कमिंग डाउन. बन रहे हैं पर मात्रा कम है. बन रहे हैं पर किसी कारण से दे नॉट एबल टू कम डाउन एट ऑल. दैट इज एक्चुअली सिंपल आंसर इज, इट इज कॉल्ड हाइपो वेयर hormones in the body are not there. As a result, there is no foot pedal, and this girl will have primary amenorrhea. This means that it's called primary amenorrhea, and this girl won't have her periods. और आपने एक बहुत अच्छी सी बात बोली, ए यंग गुड लुकिंग गर्ल. ऐसे हम जो लोगों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, so such girls are thin. Normally they are thin. I've never found, maybe I've not seen enough patients in my career, but they are thin. They are thin girls who come to us because उनकी बॉडी में हार्मोन्स है ही नहीं ना. जब ईटो की मात्रा बॉडी में बढ़ती है, ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, तो बॉडी के अंदर वो पीसीओडी को दिखाती है. बॉडी में पीसीओडी है, सो वुमेन कैन हैव लॉट ऑफ एक्ने एंड हिर्सुटिज्म, हेयर ग्रोथ आती है. जब वो सब चीजें है ही नहीं बॉडी के अंदर, सो हर स्किन विल बी टोटली क्लियर. स्किन विल बी नॉन ऑयली, क्लियर, नो एक्ने. सो नॉर्मली हमारा पूरा जो स्किन है, देखा होगा ना आपने 14-15 पे हम सब क्या लगाते हैं, कोई हल्दी का उपटन लगा रहा होता है, कोई बेसन लगा रहा होता है, साबुन लगा रहे हैं, नीम के साबुन लगा रहे हैं, टू बिकम वी वांट टू बिकम, वी वांट अ स्पॉटलेस कॉम्प्लेक्शन, यू नो. जी. सो हम ब्लेमिश सब फ्री. आजकल ब्लेमिश फ्री, आजकल ऑल द गर्ल्स आर गोइंग टू कॉस्मेटोलॉजिस्ट. एट आवर टाइम वी हैड बेसन या हल्दी लगा दिया करते थे, मुल्तानी मिट्टी. मुल्तानी मिट्टी. गुड, I thought you are very young. You have seen multani mitti. So we were using multani mitti at our times. So now, but now people go to cosmetologists. So basically, क्यों जाते हैं? Because we want clear skin. In a female, there is levels of estrogens, androgens will increase with PCOD. In the men, the levels of testosterone will increase. So we all have acne. और हम उसको, so in a patient who has got hypo, जिसे periods आ ही नहीं रहे हैं, उनमें हार्मोन्स है ही नहीं, तो she'll have very clear, clean skin. So अगर आप पुरानी कॉमिक्स पढ़ें, आर्चीज, कभी शायद पढ़ी होगी आपने, कॉमिक आती थी मेरी फेवरेट आर्चीज की. So they always have freckles, they have small freckles, they have small pimples. आर्चीज का तो yes, nice. अब तो मूवी भी आ गई. हाँ जी. तो अच्छा, okay. That's the beautiful part. So in this girl there is no problem of that nature. So they have very clear. तभी कहते हैं कि they have a very good complexion, clean complexion, but they are not getting periods. So they are the people, young girls who are suffering from hypo. हम जब इनका हार्मोन चेक करेंगे बॉडी में, तो FSH-LH बहुत ही कम रहेगा, यानी कि ऊपर से एक्सेलरेटर काम ही नहीं कर रहा है. नंबर 2, अगर हम स्कैन करेंगे तो ओवरी के अंदर फॉलिकल ही नहीं है. सो दिस इज थर्ड कंडीशन विच इज कॉल्ड प्राइमरी एमिनोरिया. उसे कभी माहवारी आई ही नहीं, एंड शी हैज गॉट ओवरी which are totally free of control. इन पर हार्मोन्स काम ही नहीं कर रहे, बॉडी में हार्मोन्स है ही नहीं. दिस इज कॉल्ड हाइपो. So these 3 conditions which come very commonly in an OPD are these 3 things. PCOD, we have then ovarian failure or impending poor ovarian reserve, and third is hypo. Yeah. तो सर अभी आज के लिए मेरा आखिरी सवाल आपसे. एक कपल आया मेरे पास, बोथ आर वर्किंग, वेरी बिजी, बट अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि फाइनली हमें प्रेगनेंसी चाहिए. कुछ टेस्ट करा के आए और वाइफ बोलने लगी कि लेकिन पीरियड्स मेरे तो इरेगुलर है, सारा कुछ वैसे नॉर्मल है टेस्ट में, तो क्या मुझे प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत आएगी मेरे इरेगुलर पीरियड्स होने की वजह से, या मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी? अगेन जो हमने अभी अब तक हमने वार्तालाप किया है,
वहीं पे अगेन वी कमिंग टू दैट के fertility potential of a woman will reduce. The reason being, every girl is programmed by her parents and by her education and by her friends and everyone around that in case you have contact between day 12 13 of your periods you will become pregnant. बाकी इज a safe period. उसके बाद कुछ होता है आप रिलेशन रखिए बट यू मे नॉट यूज कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो. But what is happening, Arpita, is that the people who have got irregular periods, अब अगर किसी के पीरियड छोटे हो रहे हैं, they have contact on day 14, but that time egg has already come out and egg has been lost. और अगर PCOD है, in that case also the the egg is not formed and they are having contact. And when the egg forms, they are not together. So दोनों केसेस के अंदर there is a loss and loss of fertility potential. तो हमारा रोल क्या है एज ए डॉक्टर एज ए गायनेकोलॉजिस्ट होल फ्रेटर्निटी. हमारा रोल ये है कि किसी भी गर्ल को बताना कि उसके पीरियड कब किस समय उसके पीरियड्स व्हाट टाइम शी इज ओव्यूलेटिंग एंड व्हेन शी इज ओव्यूलेटिंग दैट इज द टाइम दे शुड हैव प्रॉपर कॉन्टैक्ट and we can find out the time when they have to have a contact by doing an ultrasound. That is number one. Or we can also make their periods regular by giving them some tablets, so that will make her periods regular. Next cycle she can have. So it's called resetting the pattern, Arpita. अगर एक ओवरी का पैटर्न आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है तो गिव देम ओसी पिल्स फॉर 2-3 months and that will reset the pattern. So periods can be. So important we have to understand here is that there is a problem, but problem can be sorted out by timely intervention, understanding her menstrual cycles, and then telling her the day she can. I get so many young girls and boys who come with their wives and their families. सबको एक ही सवाल मुंह पे जुबान रहती है कि I'm not having pregnancy, but IVF कर दो. Actually, I don't know why it's an epidemic of जी. IVF, which I हाँ want to. जी. We shouldn't be doing this. हम पढ़ते भी नहीं कि पीरियड्स का क्या ड्यूरेशन है एंड दे डिमांड एंड वी कैरी आउट द प्रोसीजर. अगर हम उनका नॉर्मल साइकिल को भी ट्रैक करें और बोलें कि आज आपका एक फॉलिकल 20 मिलीमीटर का बन गया है, 2 सेंटीमीटर का बन गया है, फॉलिकल इज रेडी, टेक ए ट्रिगर एंड हैव टाइम इंटरकोर्स, 50% of them, 60% will become pregnant. You don't need to do intervention. Just need to spot the time when she will be ovulating. This is what we all have to learn. This has to come from the patients, not only from the doctors. They have to be made aware by some sort of counseling and going on the social media platforms. This is what we are doing today. We are educating the जी. simple people who are having problems. They don't know how to fight it. They should know that they have to establish the day of their ovulation. In case you know that her tubes are open, उनकी fallopian tubes खुली हैं. In case you come to egg and sperm count is okay, and we tell them today you have ovulated, today you have contact for next 2-3 days, and they will become pregnant. So it's very very important for us to tell them to have time intercourse or IUI before we go to IVF. But for that we need to carry out follicle monitoring. हमें उनके 3-4 बार अल्ट्रासाउंड करने पड़ते हैं, and when we find things are okay, they can have natural intercourse. Give you very very good outcome too. So that'll be my answer to your query. Okay. So I think patient education or sahi knowledge is the right way forward. So with this lot of food for thought, I think since we don't have any questions in the chat box, we can say goodbye, and when we come back soon with another wonderful question and answer round with sir to enlighten us, sir. So thank you so much. Arpita, how about your practice? How do you in your practice in Pune? How do you find? मैंने आपको अपना बताया नजरिया what I face, but what are you finding as a young doctor? What do you find in your practice in Pune? बहुत बहुत पीसीओडी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया. ऑलमोस्ट इवन यंग गर्ल्स आर कमिंग विद दीज प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें. इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका एग रिजर्व कम हुआ है. कई बार एएमएच खुद ही करा के आ जाते हैं कि मैडम हमारा एग रिजर्व कम है, तो अभी आप कुछ तो कर दो, आईवीएफ ही कर दो, जैसे आप कह रहे थे. तो पेशेंट्स आर रीडिंग, बट
हमेशा उनके पास सही नॉलेज नहीं होता है, तो हम आई रियलाइज कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वी एडुकेट देम प्रॉपरली कि Yes, yes. आईवीएफ इज नॉट योर फर्स्ट आंसर। Mhm. तो आई Very good. थिंक ये दो चीज़ें बहुत कॉमनली देख रही हूँ मैं। और एक और चीज अर्पिता, एट द एंड there is something called vitamin D levels and जी thyroid and prolactin. They come very commonly deranged. The levels of vitamin D can be low. जी The levels of thyroid can be low, hypothyroidism. The levels of prolactin can go high, and they all occur with PCOD patients. We जी have to be very जी very careful. And secondly, अगर हमने ओवुलेट कर दिया, अगर हमने ओवुलेट कर दिया और उन्होंने टाइम इंटरकोर्स रखा या हमने आईवाई करा, ये बैटल डजंट स्टॉप देयर। सो अर्पिता, हमको ये भी बताना है उनको कि अगर आपका एग रिजर्व बहुत कम था या एग रिजर्व बहुत ज़्यादा था, AMH was high or FC was high or very low, they have high chance of having an abortion also. यस Such people can abort too, because abortion rate is higher depending upon the phenotypes. So we have to be यस very very careful. It should be very, हमारा हमारा फर्ज, हमारा रोल खत्म नहीं होता कि चलो आपका प्रेगनेंसी आ गया अभी आप जाएं. We have to guide them about post conception care also. And Arpita, one more thing I like to bring out here because before we leave on, we log off, is that all the women who are coming to us, we have to make them lose weight. PCOD patient, they can lose weight. It's very important because जी they lose यस weight, the ovary will start ovulating by itself. So weight is the biggest enemy for a PCOD patients. And the women have got a lower ovarian reserve, we have to tell them beforehand that there is a problem. Time is short, respond quickly. Because in case they keep waiting, they can go into more issues. And then they always talk about nutrition. Very important to have good nutrition. चाहे हमारा रिजर्व कम है, चाहे रिजर्व ज़्यादा है, वी हैव टू टेक गुड क्लीन फूड. और फूड के बारे में बार बार से हम एक ही चीज़ कहते हैं कि टेक रेनबो डाइट. खूब सारे खाने में रंग होने चाहिए. नंबर एक, खाने में से सफ़ेद रंग निकाल देना चाहिए. सफ़ेद रंग को कम से कम कर देना चाहिए. बारिंग मिल्क एंड कर्ड और मे बी लस्सी. रिमूव एवरीथिंग विच इज़ रिफाइंड. So exotic sugars, exotic. I love my ice creams. Exotic ice creams. These are basically all white color. No, we add different colors to it. Anything which is यस anything which is non-color, they try to take multiple colors. And anything which is basically white, चावल को निकाल दीजिए, खूब सारा unnecessary आटे को निकाल दीजिए. I think things will become fine. So lose weight, take healthy diet, take long. I've seen people मुझे आके बोलते हैं, सर हम एवोकेडो खा रहे हैं. मुझे बड़ा बड़ा मजा आता है सुन के, एवोकेडो खा रहे हो. कोई खा रहा है ड्रैगन फ्रूट, हम ड्रैगन फ्रूट खिलाते हैं अपनी वाइफ को. लुक एट आवर डाइट. ये सब चीजें नहीं चाहिए. मगर खजूर खा लो, खजूर खा लो आप. खजूर से अच्छा कोई, you know, very good in carbohydrate, very good in ions. Take uh, amla, gooseberry, nothing like इंडिजिनस it. फूड्स। हाँ जी इंडिजिनस फूड खाइए आप. एवोकाडो खाकर क्या अगर अगर बाहर के लोग एवोकाडो खाते हैं, उनका वो नेचुरल डाइट है. हम एवोकाडोस को खरीदते हैं बड़े बड़े मॉल्स में जाकर, हम एवोकाडो खाते हैं. सिंपली ऐसे इज कि तुम एक आधा कच्चा आमला खा लो, दैट इज मच मोर पावरफुल, इक्वली पावरफुल देन एवोकाडो. सो हर देश के अनुसार जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, हमको उसी मात्रा में वही लोकल खाना खाना चाहिए. दे वर्क वेरी वेल. सो वॉक फॉर 10,000 steps every day, lose weight, happy. Some meditation and positivity are also very important for right ovulation. हमारे दिमाग में तो चल रही हैं 20 मीटिंग, दिमाग में चल रहे हैं खूब सारे युद्ध, और हम चाहते हैं कि हमारा टाइम पर ओवुलेशन हो. हमने बात किया हार्मोन के इम्बैलेंस की, तो सबसे बड़ा इम्बैलेंस क्या होता है? माइंड के अंदर. अगर माइंड हमारा शांत नहीं है तो ओवुलेशन विल बी अफेक्टेड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड हीलिंग, dietary, weight loss, and then these pills can be taken, and we routinely do such cases. So I think that's all from my side, Arpita. अगर कोई और सवाल नहीं है, then we can say goodbye to all. And you can always contact us. Our numbers are being displayed. We are here to help you. You can visit our different social media channels, platforms. Call us 24/7. Both Arpita and me are around with you. So that's all, Arpita. We'll meet again. यस थैंक यू सो मच सर एंड डियर फ्रेंड्स प्लीज फील फ्री टू रीच out to us at any time. Thank you so much for today and we'll be back soon with another wonderful session. Thank you sir.
थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे, बाय, टेक केयर। Thank you.